Assalamualaikum everyone, welcome back. I am Momna, your math instructor, and we are discussing a new topic today, which is standard form. अब सबसे पहले standard form होता क्या है? Most of you are probably already familiar with it, but if you are not, it is a way of writing very big or very small numbers using powers of 10. कैसे लिखना है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी, बट फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट वाई वी कन्वर्ट दीज नंबर्स टू स्टैंडर्ड फॉर्म. हमें कन्वर्ट करके फ़ायदा क्या होता है. बेसिकली स्टैंडर्ड फॉर्म पे कन्वर्ट करने से आपके एक तो कंपैरिजन्स आसान हो जाते हैं, सो इट्स ईजियर टू कंपेयर टू वेरी बिग नंबर्स or two very small numbers with each other, and it also makes your calculations relatively easy. ये पेपर 1 में आता है टॉपिक. This is a paper 1 topic, so please expect that calculators will not be allowed, and any calculation that we will do for this chapter, make sure you are doing it without a calculator. So we were talking about how standard form makes your calculation easier. ये जब आगे हम standard form में calculations करेंगे आपको नज़र भी आएगा that converting very big or very small numbers into standard form makes their calculation very easy. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर आपने एक नंबर लिखना है तो वो नंबर किस तरह लिखते हैं. द नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म आर ऑलवेज रिटन इन द फॉर्म a into 10 raised to power n. तो अगर आपको कोई भी नंबर इस फॉर्म में नज़र आता है, इट कैन बी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, लेकिन इस पे एक कंडीशन है. कंडीशन क्या है? प्रोवाइडेड that the number that is written in the standard form is greater than or equal to 1 and less than 10. प्लीज़ नोट कि यहाँ पर इक्वालिटी है लेकिन यहाँ पर इक्वालिटी नहीं है. तो यहाँ पर जो a है उस पे कंडीशन ये है कि दिस a should be greater than or it can also be equal to 1 but it should be less than 10. क्या कंडीशन है? a is greater than or equal to 1 एंड a इज़ लेस देन 10. ठीक है, अगर तो वो इस फॉर्म में है और आपकी ये वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है, देन यू कैन से दैट दैट नंबर इज़ रिटन इन इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म. नाउ लेट्स ट्राई टू आइडेंटिफाई numbers in standard form. We'll do 1 to 2 questions together, and then I want you to pause the video, identify if the following numbers are in standard form or not, get to your answer, and then play the video to see if you've done it right, and if you haven't, to also see the explanation. अच्छा, अब सवाल क्या है? State whether the following numbers are in standard form or not. Numbers आपके कौन से हैं? Let's talk about these 4 numbers first. The first one is 31.5 into 10 raised to power 6. अब स्टैंडर्ड फॉर्म की 2 कंडीशन क्या है? एक कंडीशन ये है कि वो a into 10 raised to power n की फॉर्म में होना चाहिए. वो है. You can see that you have a number and into and then you have 10 और उसकी कोई पावर है, तो आपकी ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो रही है. बट द सेकेंड कंडीशन इज़ दैट a should be greater than or equal to 1 and it should be less than 10. अब यहाँ पर हमारा a क्या है? यहाँ पर a है 31.5. So a over here is 31.5. Is 31.5 between 1 to 10 provided that it can also be equal to 1? It is not. वो 10 से बड़ा है. तो आपकी जो ये वाली कंडीशन है ये तो फुलफिल नहीं हो रही. Then that means that this is not in its standard form. सेकेंड पे आ जाएं. अब सेकेंड में आपके पास अगेन यू कैन सी दैट इट इज़ रिटन विद 10 रेज टू द पावर समथिंग, तो आपकी ये वाली फॉर्म तो हो रही है. बट इज़ दिस नंबर a जो हमारे पास 4.2 है, इज़ इट ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 and is it less than 10? Yes it is. यहाँ पर आपका a क्या है? यहाँ पर a is 4.2. Because 4.2 is between 1 to 10, then yes, this is going to be in its standard form. Do 3 and 4 together and I will come back with the answers. Okay, I hope you've done it and you've done it correctly. Here are the answers. If you haven't, I will walk you through it. अब आपके पास यहाँ पर a क्या है? 42 है. सबसे पहले it is written in the form a into 10 raised to power n, तो ठीक है, well and good. यहाँ पर a क्या है? 42 है.
which is not meeting this requirement over here, so no, this is not in standard form. यहाँ पर आपका पहली अगेन कंडीशन मीट हो रही है 5.6 इंटू 10⁻11. अब येस इट इज़ रिटन इन द पावर्स ऑफ 10, ठीक है, सो आपके पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, एंड 5.6 is also fulfilling this condition over here, so yes, this is also in standard form. Let's do a few more examples. Pause the video, try to get these done, and I will be back with the answers for these as well. ओके, हियर आर द आंसर्स. यहाँ पर आपके पास ए क्या है, पहले तो वो उस फॉर्म में है तो येस, बट यहाँ पर आपका ए 10 है. कंडीशन क्या है, दैट इट शुड बी लेस देन 10, नॉट इक्वल टू 10. मतलब अगर ये आपका 9.9999 तक भी होता तो आप उसको कंसिडर करते, बट एज सुन एज इट बिकम्स 10, एज सुन एज यू राइट 10, इट इज़ नो लॉन्गर इन स्टैंडर्ड फॉर्म. सो नो, दिस इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. वाई? बिकॉज ए आपका यहाँ पर 10 है. यहाँ पर ए क्या है, 0.14. पहले तो वो पावर वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन जो ए है वो 0.14 है. 0.14 इज़ लेस देन 1. 0.1 से छोटे नंबर्स कौन से होते हैं, जब वो पॉइंट में चले जाते हैं. तो 0.9999 तक भी होगा तो वो भी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होगा. जैसे ही वो 1 बन जाता है तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाती है, बट बिकॉज यहाँ पर आपका 0.14 है, देन नो, इट इज़ नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म. 8.7 है यहाँ पर ए. 8.7 इज़ लेस देन 10 एंड इट्स ग्रेटर देन 1, सो येस. यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ पर मसला ये है कि वो इस फॉर्म में ही नहीं लिखा हुआ, वो a इंटू 10 रेज़ द पावर n की फॉर्म में ही नहीं लिखा हुआ, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो ही नहीं सकता. यू विल नॉट हैव टू चेक वेदर a जो है वो आपकी रिक्वायरमेंट मीट कर रहा है कि नहीं, बिकॉज इट्स नॉट इन द फॉर्म दैट यू आर लुकिंग फॉर. अच्छा, नाउ दैट वी हैव learned how to identify if a number is written in its standard form or not, या जो standard form होती है वो किस तरह लिखते हैं उसको. My question is the numbers that are not in standard form, तो ये जो हमने नो लिखे हैं, is there a way that we can write them in standard form? For example, सबसे आसान एग्जाम्पल है ये नंबर यहाँ पर 8500. Can we write 8500 in standard form? The answer is yes. All numbers can be expressed in standard form. आप हर standard form is basically a way of expressing numbers. तो आप किसी भी नंबर को standard form में लिख सकते हो. तो ये जो हमने यहाँ पर नो लिखे हुए हैं, इनको standard form में convert करने का भी कोई तरीका होगा, because we just said that all numbers can be written in standard form. तो ये भी तो एक नंबर है, ये भी तो एक नंबर है. अगर ये अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो हम इसको चेंज कर सकते हैं ताकि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाए, एंड इट फुलफिल्स द कंडीशंस दैट वी हैव सेट ऑन एक्सप्रेसिंग नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म. अब द क्वेश्चन इज, हाउ डू वी कन्वर्ट अ नंबर टू इट्स स्टैंडर्ड फॉर्म? थिंक अबाउट इट. यहाँ पर आपकी कंडीशन क्या थी कि 31.5 ये जो नंबर है कि 10 से कम होना चाहिए, बट बिकॉज 31.5 वॉज नॉट लेस देन 10, हमने कहा कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है. कोई ऐसा तरीका है कि ये नंबर भी चेंज ना हो और आप इसी नंबर को इस तरह एक्सप्रेस कर सकें, या इफ़ यू कैन राइट इट इन सच अ वे दैट दिस कंडीशन ऑन ए इज़ ऑल्सो मेट. You're not changing the number. Please remember that the number will remain the same. लेकिन जो कंडीशन आपने रखी है ए पे वो किसी तरह फुलफिल हो जाए. मतलब आप इसी नंबर को विदाउट चेंजिंग द नंबर यू आर कन्वर्टिंग इट टू स्टैंडर्ड फॉर्म. थिंक अबाउट इट. डू यू थिंक देयर इज़ अ वे कि आप इसको चेंज किए बगैर अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म की दोनों कंडीशंस मीट कर सकते हो? गिव इट अ गुड थॉट एंड आई विल पिक अप from here in the next video. Take care everyone. Allah Hafiz.